So, good morning, all of you. Today we have to start our again next class on Python. So we have to just share the screen. So today you want to know the software which is used for Python coding. So I have already installed the Anaconda. So after installing the Anaconda, you have to go the next step, that is Anaconda Navigator, which is show the screen in your side. So in previous class, we have to read Python tokens as well as Python data type and different type of operator, what is identifier, what is keyword, and what is literals, and describe the agenda of Python as well as the syllabus in previous class. So in next we have to study the Python string. So you can see that Anaconda Navigator is initializing in that particular screen. So from today we have to read Python strings. So strings are a sequence of characters that are enclosed within single quotes, double quotes और triple quotes. एंड उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे अभी. सो सिंगल कोट में जो भी आप प्रिंट स्टेटमेंट में पास आउट करेंगे वो भी आउटपुट आएगा, और डबल कोट में भी आएगा, और ट्रिपल कोट में भी जो लिखोगे वही आएगा. जैसे हेलो वर्ल्ड को सिंगल कोट में लिखोगे प्रिंट में लेके तो वो प्रिंट आएगा, वही आएगा. डबल कोट में भी कुछ लिखोगे आई एम ए बॉय तो वो भी आएगा. वो एग्जांपल करके हम देखेंगे. और उसके बाद दिस स्ट्रिंग हैज़ लाइन्स, कोई भी सेंटेंस आप अगर ट्रिपल कोट्स में लिखोगे तो वो भी आपको शो करेगा एज एन आउटपुट. वो कैसे शो करेगा, स्लैश एन क्या है, स्लैश टी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, वी हैव टू नो. So in that after Anaconda Navigator open, you have to go for Jupyter Notebook. Here it is showing Jupyter Notebook launch. Okay, so these are the various this is the applications on your base root. Okay, so you can see that particular first this, then you can study. So first is cmd.exe prompt file, means it is a command prompt Python you have to use. And then Jupyter Lab. So the different type of interactive and reproducible computing in that particular Jupyter Lab we have to do. Then Jupyter Notebook, which we are using, because in previous class we have to need to study Jupyter Notebook, that is browser based interpreter for Python. Then in PowerShell also you have to use the Python, that is the Qt console, that is Spider, that is Studio Code. Okay, for that this one we have to use the Python code itself. And then we have GlueVis. GlueVis is a multi-dimensional data visualization. Okay, that every files will be going the multi-dimensional. If you are going to x-axis or y-axis, you can use this one. So every things comes under one, that is Anaconda Navigator. So in that particular Anaconda Navigator, you have to know that R is also available. R is a program plus Python, R and Python. If you are using, then you have to build the AI applications of any softwares, AI, data science, or machine learning. Okay, so you have to go for Jupyter Notebook. So you can see that one after GlueBase there is R Studio, and Orange 3. You can see that one. Okay, so I go for Jupyter Notebook launch.
So we are launching the notebook of Jupyter from Anaconda Navigator. So today class is very interesting. After that we can discuss about the NCERT syllabus of first chapter. That is basically all theories it is. So we need to today for some practical on Jupyter Notebook. So you can see that in that particular screen, one local host is open for Jupyter Notebook. You can do that and in offline also. Okay. So another things are available also in online. You can write the code in Python. Um, so later we'll discuss about that. So first one we have to go. This is the Jupyter notebook screen, and in the Jupyter notebook screen you have to go. This is the file path, whatever available in your system. Whatever available in your system, it will be open. Contact, desktop, documents you can open through the Jupyter notebook. So you have to go for new, then Python 3. So then opening your Jupyter notebook one screen. Okay. So in that screen you have to remember this one. This is your first Python named. So whatever the file name is, extension is .ipynb. Okay. So rename it is. So first Python से ऑन सब चेंज हो गया, तो ये आपको रहेगा क्या, यूजर फ्रेंडली रहेगा, जैसे आपका रहता है जैसे लाइक नोटबुक और डॉक्यूमेंट. सो लाइक दैट से नेम डाउनलोड भी कर सकते हैं. उसके बाद एडिट रहेगा, कॉट कॉपी पेस्ट. उसके बाद व्यू रहेगा. उसके बाद इंसर्ट रहेगा. अगर सेल आपको ऊपर या नीचे इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेल है जो इन लिखा गया है. वो सेल को रन करना है, आउटपुट करना है. और उसका कर्नल, कर्नल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज ए एप्लीकेशन ऑल्सो. विजेट है इधर, और ये हेल्प सेक्शन है. इसमें हेल्प सेक्शन में आप सब कुछ पा सकते हो. पाइथन का रेफरेंस पा सकते हो अगर पढ़ना है. नमपाई जो एक लाइब्रेरी है, आई पाइथन है वो एक लाइब्रेरी है. साईपाई रेफरेंस है, साईपाई के बारे में जान सकते हो. मैटप्लॉटलिब जो हमारा एजेंडा में वो पढ़ेंगे, उसका रेफरेंस है, मतलब बुक से यू हैव टू गो इफ यू आर इन ऑनलाइन. सिंपाई है और पांडास है. तो हम मैटप्लॉटलिब, पांडास एंड नमपाई जो तीन लाइब्रेरी पढ़ेंगे, और बहुत सारे लाइब्रेरी हैं पाइथन को जानने के लिए. उसका नोटबुक है, कैसे कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि शॉर्टकट की कहाँ से कहाँ आपको रन अप करना है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट लाइक यूजर फ्रेंडली. ओके. सो वी हैव टू गो फॉर राइट आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम इन जुपिटर नोटबुक. ओके. सो प्रिंट सिंगल कोट में मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड. So after that we have to click the run button. So it is showing the hello world. So Python program is very simple. In one line you have to write the print output statement. But in our C, C++, Java, you have to write some different line of code. Then it will show the output. Okay. So this is better and good to be understand for anyone new one. If he or she does not know what is keyboard, what is operators. So this is best one. So this is the your Python fast program. Then we have to go for Python strings. So how it will be written, अभी हम करते हैं प्रिंट. हम अगर ये डबल कोट हो गया, ये सिंगल कोट, मतलब ये ट्रिपल कोट में आ गया. सो ट्रिपल कोट में मैं लिखना हूँ दिस इज ए स्ट्रिंग. तो ये अभी रन कर रहा हूँ, तो ये आपको सेम सिंगल कोट में दिखाया. क्यों दिखाया? क्योंकि आफ्टर डबल कोट वी हैव टू पुट द
जो बटन है, तो इसलिए सिंगल कोट में आंसर लिखा है। अभी हम देखेंगे, ये देखिए ऊपर जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है सिंगल कोट में, ये कुछ नहीं दिखा है। अगर ये डबल कोट में हमने सिंगल कोट दिया है तो ऐसा रहेगा। फिर से देखते हैं, यहाँ पर हम एडिट कर देते हैं। ये है ट्रिपल कोट, ठीक है। वो डबल कोट के बाद एक कोट था, तो ये हो गया ट्रिपल कोट। ये हो गया ज़्यादा हो गया। तो फिर से ये लिखवा देते हैं, बेटर रहेगा। अच्छा, ट्रिपल कोट हो गया। सो दिस इज ए, सो मैंने बोला था क्या कि स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट एनक्लोज विद इन द सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, वॉट एवर। सो यू हैव टू सी द आउटपुट। सी, without any single quote or double quote or triple quote, it is showing the output. Means in above you see that in single quote also it is giving the output, in triple quote also it is giving the output. So double quote में भी वो आएगा। तो ये मैं डिलीट करता हूँ, डबल कोट में देखते हैं अभी। तो ये डबल कोट है, दिस इज स्ट्रिंग। सो ये डबल कोट में हो गया। मैं अभी रन करता हूँ। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। अच्छा, डबल कोट मतलब ये जाएगा ना, डबल कोट मतलब जो डबल कोट अवेलेबल है। ओके, सो अभी रन करते हैं। सो sorry, so this is a string, so it is coming with the same output whatever written in the print command in a single quote, double quote or a triple quote. Okay, so this is a string. अभी हम करते हैं क्या, ये यहाँ पर एक लिखते हैं /n, इसका मतलब उसके बाद कुछ लिखता हूँ, आई एम बॉय, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर हम /n नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, अगर /n लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले /n नहीं हटवा देते हैं, ये स्पेस देके लिखा है। मैं रन करता हूँ, क्या आउटपुट आ रहा है देखिए। जो अवेलेबल है डबल कोट में वो आपको प्रिंट में आउटपुट में दिखाता है, लेकिन जब हम /n लिखवा देते हैं, /n का मतलब होता है इट विल गोइंग टू नेक्स्ट लाइन। ओके, सो अभी मैं रन करता हूँ यहाँ पर रख के, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए आउटपुट में क्या हुआ, टी जहाँ से शुरू हुआ, दिस इज ए स्ट्रिंग, सो नेक्स्ट लाइन में टी जहाँ से शुरू होना है वहीं पर शुरू होना था, लेकिन ये शुरू हुआ थोड़ा एक स्पेस देके, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक स्पेस, वो स्पेस में हटा देता हूँ। अभी देखिए स्पेस हटा दिया, उसके बाद रन किया तो ये स्पेस भी चला गया। सो टी जहाँ से शुरू हुआ आई भी वहाँ से शुरू हुआ। तो ये हम लाइन बाय लाइन आउटपुट अगर देखना चाहते हैं आउटपुट में इन पाइथन प्रोग्राम, यू कैन राइट इट इन वे। ओके, सो /t अभी देखेंगे, टी का मतलब क्या है। /t स्पेस दे देता हूँ, टी मतलब यू हैव टू गो फॉर नेक्स्ट टैब। जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखते हैं दिस इज ए स्ट्रिंग, देन उसके बाद कुछ स्पेस देते हैं, मतलब एक या दो स्पेस अगर देंगे तो यू हैव टू यूज द बैक स्पेस, you have to use the space bar. But if you go for tab, then it will giving some space like 5 to 6 spaces. You can write it in tab in Word document. So just like that, you have to give the /t. So you know that /t and /n, what is the use and benefit in that particular screen, and beautiful coding, beautiful output you have to see. So this is the string. So after that, we have to understand some strings functions. Okay, string is the data type, so strings are different types of functions.
हाउ इट विल बी यूज। सो यहाँ पर एक करते हैं, स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग का नेम माई स्ट्रिंग में हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे डबल कोट में, दिस इज स्पार्टा। हम पहले रन करेंगे ये करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो आपको नेक्स्ट लाइन कोड में जाएगा, अगर नहीं करेक्ट है तो आपको एरर थ्रो करेगा जैसे प्रीवियस में हुआ था। तो ये नेक्स्ट में चला गया, मतलब ये सक्सेसफुली स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। तो अभी जो माई स्ट्रिंग में क्या है वो हम देखेंगे, जो हमने स्टोर किया है वो है या नहीं। सो माई स्ट्रिंग को रन करेंगे। अभी देखिए दिस इज स्पार्टा, ऑलरेडी आउटपुट आ गया। तो मतलब हमारा माई स्ट्रिंग में ये ठीक से स्टोर है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जो आउटपुट आया है अगर वो स्ट्रिंग में हमको फास्ट कैरेक्टर देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माई स्ट्रिंग करके यहाँ पर हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, अगर फास्ट कैरेक्टर देखना है तो आपको इंडेक्स वैल्यू डालना पड़ेगा। इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, जो दिस इज स्पार्टा है, जो कैपिटल टी है वो 0 इंडेक्स वैल्यू है, एच जो है वो 1 इंडेक्स वैल्यू है, आई जो है वो 2 इंडेक्स वैल्यू है, एस जो है वो 3 इंडेक्स वैल्यू है, उसके बाद एक स्पेस है वो 4 इंडेक्स वैल्यू है, उसके बाद स्मॉल आई आया इज में, उसका 5th इंडेक्स वैल्यू है, फिर स्मॉल एस आया उसका 6th इंडेक्स वैल्यू है, फिर एक स्पेस आया उसका 7th इंडेक्स वैल्यू है, फिर उसके कैपिटल एस आया स्पार्टा में तो वो 8 इंडेक्स वैल्यू है, पी है 9 इंडेक्स वैल्यू, ए है 10 इंडेक्स वैल्यू, आर है 11 इंडेक्स वैल्यू, टी है स्मॉल टी है जो स्पार्टा में वो 12 इंडेक्स वैल्यू है। तो ए है 13 इंडेक्स वैल्यू। आई थिंक समथिंग गोइंग रॉन्ग। सो दिस मीन्स दैट इज 0 1 2 3, उसके बाद स्पेस है 4 इंडेक्स वैल्यू, आई एंड इस 5 एंड 6, उसके बाद स्पेस है 7 इंडेक्स वैल्यू, उसके बाद एस से शुरू हुआ 8 इंडेक्स वैल्यू, पी हुआ 9 इंडेक्स वैल्यू, ए हुआ 10 इंडेक्स वैल्यू, आर हुआ 11 इंडेक्स वैल्यू, टी हुआ 12 इंडेक्स वैल्यू, ए हुआ 13 इंडेक्स वैल्यू। सो ये अभी पाइथन स्ट्रिंग का फास्ट कैरेक्टर दिखाएगा। तो फास्ट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी है। तो आपको दिखा दिया क्या आउटपुट है। अगर हम वही वो स्ट्रिंग में लास्ट कैरेक्टर देखना चाहते हैं, जो एलिमेंट स्टोर है उसका लास्ट कैरेक्टर देखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे -1। -1 अगर हम लिखेंगे तो आपको ये लास्ट कैरेक्टर दिखाएगा, दिस इज स्पार्टा स्मॉल ए, उसका लास्ट कैरेक्टर है। उसके बाद हम देखेंगे कि माई स्ट्रिंग में और एक फंक्शंस हैं, जैसे कि कहाँ से कहाँ तक आप जो स्ट्रिंग है कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स आप देखना चाहते हैं। जस्ट लाइक 5:11, तो मतलब इसका मतलब क्या है ना, 5th इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होगा 11th इंडेक्स वैल्यू तक, ना कि including 11th index, that is excluding 11th index, that you have to understand. Okay, so in that particular string 5:11 मतलब 5th इंडेक्स वैल्यू इंक्लूड होगा। हमारा 5th इंडेक्स वैल्यू क्या है ना, स्मॉल आई है, जो दिस इज जो है आई एस जो है वहाँ से शुरू करेगा। 11th इंडेक्स को एक्सक्लूड करके 5th to 11th, इसका मतलब है 5:11। ठीक है, तो अभी रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है आउटपुट। इज का तो स्मॉल आई जो था वो 5th था, ये 6th है, स्पेस 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10 है। तो 11th को इंक्लूड नहीं किया, मतलब आर इंक्लूड नहीं हुआ। सो दिस इज द आउटपुट। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको चाहिए कि सारा जो है वो सारा आउटपुट चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि सोचिए 0 इंडेक्स वैल्यू में चाहिए तो 0:2 उसके बाद छोड़ देना है। तो मतलब 0 से स्टार्ट होके पूरा लास्ट तक जाएगा, व्हाट एवर अवेलेबल स्ट्रिंग इन माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हम रन करते हैं, देखते हैं, देखें अभी आ गया पूरा, दिस इज पार्ट। ओके, सो उसके बाद है और एक फंक्शन है लेंथ जानने के लिए कि कितना लेंथ है। जैसे हम 13 कैलकुलेट किए
तो ऐसा बार बार तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू डिक्लेयर द स्ट्रिंग इन दैट पर्टिकुलर लेंथ फंक्शन। तो अभी हम रन करते हैं, देखिए तो ये हमको दे दिया कि 14, टोटल स्ट्रिंग 14 है, ठीक है। तो कैसे हुआ ना, ये हो गया 4, स्पेस हो गया 5, ये हो गया। हाँ, अभी लेंथ क्या है, जो हमने कैलकुलेट किया था 0 इंडेक्स वैल्यू से लेके यहाँ तक 13 हो रहा था। लेंथ जब डिक्लेयर करोगे तब 0 इंडेक्स वैल्यू से ना लेके वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू लेगा, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं लेगा, फर्स्ट इंडेक्स काउंट करेगा। सो THIS ये हो गया 4, स्पेस हो गया 5, ये हो गया 6 7, स्पेस हो गया 8, ये हो गया 9 10 11 12 13 और 14। तो लेंथ आपका माई स्ट्रिंग का क्या है, 14। लेकिन जब आप स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर देखना चाहोगे तो वो फास्ट कैलकुलेट करेगा 0 इंडेक्स और वैल्यू। अगर 0 आप पास करते हो तो 0 इंडेक्स मतलब फास्ट इंडेक्स वैल्यू शो करेगा। तो ऐसा अगर इंडेक्स वैल्यू देखना चाहेंगे तो आपका 13 इंडेक्स वैल्यू है इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने डिक्लेयर किया है माई स्ट्रिंग में, दिस इज स्पार्टा। लेकिन अगर लेंथ देखना चाहेंगे तो वो काउंट करेगा नंबर फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, ओके। सो उसके बाद और एक फंक्शन है माई स्ट्रिंग में, माई स्ट्रिंग डॉट लोअर, मतलब दिस इज स्पार्टा में हम सारे को लोअर करेंगे, तो जो अवेलेबल है उसको माई स्ट्रिंग को लोअर केस में दिखाएगा। तो मतलब दिस इज स्पार्टा जो कैपिटल टी था वो स्मॉल हो गया। उसके बाद वैसे आपका और एक फंक्शन है अपर, अपर अगर करोगे तो क्या होगा, सारे अपर हो गया जैसे आपका वर्ड डॉक्यूमेंट में रहता है। सो दिस इज स्पार्टा, ओके। उसके बाद रहेगा रिप्लेस, हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस फंक्शन आप यूज़ करेंगे, रिप्लेस मेथड आप यूज़ करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे उसको पहले हम सिंगल कोट में लिखेंगे। दिस इज स्पार्टा में एस बहुत बार है तो एस हमने दे दिया, तो एस को रिप्लेस किससे करोगे, एस को रिप्लेस जेड से करेंगे, ठीक है। तो जो अवेलेबल है माई स्ट्रिंग में जो जहाँ पर एस है वहाँ पर जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं रन करके। सो यहाँ पर देखिए दीज आर द केस सेंसिटिव, मतलब मैंने कैपिटल एस दिया तो कैपिटल एस के जगह ही कैपिटल जेड हुआ, स्मॉल एस के जगह नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एस लिख देता हूँ, स्मॉल एस, ओनली एस लिख देता हूँ, वहाँ पर से कैपिटल जेड। तो ये भी रन करते हैं, देखिए। सो जहाँ पर स्मॉल एस था वहाँ पर कैपिटल जेड हुआ आउटपुट में, दिस इज स्पार्टा, ओके। सो यू हैव टू केस सेंसिटिव, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये सभी। सो उसके बाद हम काउंट मेथड यूज करेंगे। तो अभी हम स्ट्रिंग को चेंज करते हैं कुछ, माई स्ट्रिंग 1 करवा देते हैं, वहाँ पर से हम रखेंगे मैंने हेलो हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये अभी हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करवा देते हैं। स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गया सक्सेसफुली। देन वी नीड टू नो इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग में हम काउंट करवाना चाहते हैं। जैसे सोचे कि बहुत बड़ा फाइल है, वहाँ से आप कितने बार हेलो लिखे हो, तो ये आप करोगे। सो हेलो कितनी बार है इन दैट पर्टिकुलर माई स्ट्रिंग 1 में, वन किया था, तो हेलो कितनी बार है, तो आपको 3 आउटपुट दिखाएगा। तो हेलो हेलो वर्ल्ड में हेलो 3 बार है। उसके बाद क्या है, हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट फंक्शन से यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले हम फाइंड फंक्शन से यूज़ करते हैं माई स्ट्रिंग में। माई स्ट्रिंग में हम एस लिखे थे, तो एस कहाँ कहाँ पर है वहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल एस दे दिया, माई स्ट्रिंग में आप जाओगे
मेथड यूज करेंगे फाइंड स्मॉलेस्ट कहाँ पर है, पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो स्मॉलेस्ट कितनी बार है, 3 बार है। ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एस कितने टाइम है, यहाँ पर आपको जो कैपिटल है से रिप्लेस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। सो स्मॉल एस दिस इज स्पार्टा में स्मॉल एस कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप स्पार्टा लिखें, ठीक है, स्पार्टा कितनी बार है, 1 बार है, तो वो आपको वो आउटपुट दिखाएगा स्पार्टा। स्पार्टा मतलब वहाँ पर से जो कैरेक्टर है वो फाइंड आउट कर देगा, SPARTA, ठीक। तो उसके बाद हम जाएंगे क्या, कैसे स्प्लिट मेथड यूज होता है। सो हम नेक्स्ट जाएंगे, पहले का स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं यहाँ से, माई स्ट्रिंग हेलो में कुछ नया लिखते हैं, माई स्ट्रिंग 1 में दिस इज एप्पल्स, दिस इज एप्पल्स को हम फिर कोट में लिखेंगे। मैंगो लिखेंगे, फिर हमने डबल कोट को एंटर किया। तो हम ये कॉपी कर देते हैं, पहले कंट्रोल एक्स करवा देते हैं, इसको सिंगल कोट में लिखते हैं। So this is apples and mango। so ये हमने डिक्लेयर करवा दिया माई स्ट्रिंग में, इसको रन करवा देते हैं। दिस इज नॉट डिफाइंड, ये हम ओके, अभी हो गया करेक्ट, रन करवा देते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स लिख रहा है, दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो। स्प्लिट करेगा आपका विद द कॉमा। syntax warning is with a literal, did you mean is equal to, अच्छा ये लिटरल्स डिक्लेयर हो गया है, इज विथ ए लिटरल। अच्छा था ये सिंगल, दिस इज एप्पल, दिस इज ओके। सो ये आप ऐसे ही डिक्लेयर होता है जब मैंने रॉन्ग किया था। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर, व्हाट टाइप ऑफ एरर इट इज, देन इट विल शोइंग यू। सो दिस इज एक सिंगल कोट में रहा, उसके बाद और एक एलिमेंट रहा एप्पल्स, और एक एलिमेंट रहा मैंगो इन ए सिंगल कोट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो अभी क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो कहाँ पर यूज़ करेंगे, माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट माई स्ट्रिंग 1, माई स्ट्रिंग 1 में हम स्प्लिट मेथड यूज़ करें। स्प्लिट मेथड यूज़ करके हमको क्या दिखवाना है, मतलब क्या दिखवाना है, क्या है जो कॉमा है वो दिखाएगा। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आएगा।
this is tuples ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। अच्छा ये टपल्स हमने डिक्लेयर कर दिया माई स्ट्रिंग में। ओके ओके, सो इट इज एन स्ट्रिंग डाटा टाइप, सो वी हैव टू गो command double quote and that is a tuples object has no attribute split। ओके सो ये क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप में हमने प्रोडक्ट स्प्लिट यूज करके ये किया था। okay, so you need to see once again this error, find out। okay, so you have to remove this one। माई स्ट्रिंग में हम यूज़ करते हैं, माई स्ट्रिंग में तो यूज़ नहीं किए हैं स्प्लिट मेथड, तो स्प्लिट मेथड हम आपको दिखाएंगे बाद में, ठीक है। सो उसके बाद हम जाएंगे डाटा स्ट्रक्चर्स जो पाइथन में है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वट एवर अवेलेबल इन द पाइथन। so we need to close that particular session, and then next session we have to read the first chapter of the Python, then we have to go for data structure in the Python। so thank you both of all of you, have a nice day, thank you।